Good morning, dear students. Chapter number 7, rotational motion. Today we have discussed a radius of gyration as a measure of way in which the mass of rotating rigid body is distributed with respect to the axis of rotation. So we can define a new parameter is a radius of gyration as a measure of the way in which the mass of a rotating rigid body is distributed with respect to the axis of rotation. So we can define a new parameter, new physical quantity is a radius of gyration. And radius of gyration is denoted by k. Let's consider here total mass of rigid body is capital M. Total mass of rigid body is capital M. And assume the mass of the particles are m1, m2, m3 up to mn, and the position vector from axis of rotation are r1, r2, r3 up to rn respectively. So total moment of inertia of rigid body, capital I is equal to rigid body of first particle, rigid body of second particle, and up to rigid body of nth particle, means m1 r1 square plus rigid body of second particle m2 r2 square, and up to so on mn rn square. But let's consider a mass of all particles remains same. If mass of all particles remains same, means m1 is equals to m2 is equal to up to mn is equals to m, तो हम सब में से m कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस up to rn स्क्वायर. अब n से मल्टीप्लाई करो और n से डिवाइड करो, n से मल्टीप्लाई करो और n से डिवाइड करो. What is n? Number of particles. If mass of one particle, mass of each particle is small m, so how many number of particles? n. तो n number of particles का total mass कितना होगा? nm. n is the total mass of the total mass of rigid body. Total mass of rigid body. So total mass of rigid body capital M is equal to nm. तो nm की जगह कैपिटल m लिख दो, तो I is equal to mk square, and k is radius of gyration, where k square is equal to r1 square plus r2 square up to rn square by n. तो k क्या मिल गया? रूट ऑफ r1 square plus r2 square plus up to rn square divided by n, and this is the radius of gyration. So what is radius of gyration? The radius of gyration of body about an axis may be defined as the distance from the axis of the mass point whose mass is equal to the mass of whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of body about the axis. तो यहाँ पर सब रिजिड बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन है. तो फर्स्ट इज थिन सर्कुलर रिंग, और उसका जो एक्सिस है वो सिलेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस पासिंग थ्रू सेंटर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. और जो भी इक्वेशंस है ना उसको हम कंपेयर करेंगे आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर के साथ, तो आपको के मिल जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन. तो इसको हम एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर करें तो एम कट, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मीन्स के इज इक्वल्स टू आर. थिन सर्कुलर रिंग अबाउट अ डायमीटर एक्सिस, मीन्स पहले जो एक्सिस है वो ऐसे है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये रिंग है दूसरी एक्सिस हमने ऐसे सिलेक्ट की, दोनों सेंटर में से ही पास हो रही है, बट ये टूवर्ड्स अबाउट अ डायमीटर, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2.
फिर से इसको एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर करो तो के इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। सर्कुलर डिस्क यानी 1 रुपीज़ का कॉइन, तो इस सर्कुलर डिस्क, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू, तो के इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर एक्सिस, यानी 1 रुपीज़ का कॉइन है, उसके ऊपर हम ऐसे अगर रखे तो वो है डायमीटर, तो इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई फोर। जो डायमीटर एक्सिस आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ होगा। देखो जैसे यहाँ पर एम आर स्क्वायर है तो एम आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई टू है तो उसका हाफ एम आर स्क्वायर बाई फोर, तो के इज इक्वल टू आर बाई टू। होलो सिलेंडर और रिंग दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी रिंग आप एक दूसरे के ऊपर रखो तो होलो सिलेंडर बनेगा। तो होलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम टू सेम रिंग के जैसा एम आर स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू आर। वैसे जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, तो के इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/3 आर। सॉलिड स्पीयर, तो आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/5 आर। थिन रॉड ऑफ लेंथ एल, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो के इज इक्वल टू एल बाय रूट ऑफ 12, के इज इक्वल टू एल बाय रूट ऑफ 12। ये सब बॉडी, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.11, टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर अप्लाइड, टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर अप्लाइड टू अ होलो सिलेंडर and a solid sphere, and both having the same mass and same radius. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry, and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. So which of the two will acquires a greater angular speed after a given time? तो पहले हम होलो सिलेंडर की बात करें तो होलो सिलेंडर के लिए टॉर्क टाउ वन, टॉर्क एक्टिंग ऑन होलो सिलेंडर टाउ वन, मास m1, रेडियस r1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1, and angular speed is omega 1. For solid sphere, torque tau 2, mass m2, radius r2, moment of inertia i2, and angular speed omega 2. अब यहाँ पे लिखा है टॉर्क रिमेन सेम, वेयर torque of equal magnitudes. Torque of equal magnitudes means tau 1 is equals to tau 2, but tau is equals to I1 omega 1 and I2 omega 2. Left hand side what is I1? Moment of inertia of hollow cylinder, तो उसके लिए mr square. And what is tau 2 for solid sphere? 2/5 mr square. ये पूरा टेबल आपको याद करना पड़ेगा। तो 2/3 mr स्क्वायर, अरे 2/5 mr स्क्वायर एंड लेफ्ट हैंड साइड mr स्क्वायर, बट सेम मास एंड सेम रेडियस, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो m कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2/5 ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 5/2 ओमेगा 1, 5/2 मीन्स 2.5. So from this equation, angular speed of solid sphere is greater than angular speed of hollow cylinder. Angular speed of solid sphere is greater than angular speed of hollow cylinder. Next, a solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with angular speed 100 radian per second, and the radius of cylinder
The radius of cylinder is 0.25 meter. So what is the kinetic energy associated with the rotation of cylinder? And what is the magnitude of angular momentum of the cylinder about its axis? तो सॉलिड सिलेंडर का मास आपको दिया हुआ है 20 kg, एंगुलर स्पीड इज 100 एंड रेडियस इज 0.25. सॉलिड सिलेंडर मीन्स डिस्क, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 and rotational kinetic energy K is equals to half I omega square. I is a moment of inertia mr²/2. वैल्यू पुट करो, m की जगह 20, r की जगह 0.25 स्क्वायर एंड ओमेगा इज 100. सो आंसर इज 3125 जूल. अब एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें. एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा. आई की जगह फिर से mr²/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर इज 62.5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो ये थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब रिजिड बॉडी का और दो एग्जांपल्स.